Okay, let me start recording. Good morning, sir. Good morning and afternoon. So, we are solving sample paper, and I'm so sad that I'm getting very less response. There are 17 students in the class, and no one is giving any kind of response. Honestly, say how many of you have solved this? I have told you that you can solve it in part wise. You take time, no problem, but at least you solve the question paper. Krishika is saying I have solved. Okay, Krishika, you need to send me. Okay, make it a PDF and then send me. Okay, so do one thing. Turn on your camera and show me that you are writing. Why you are becoming so lazy? I don't know. Yes, I can see Prakhar Nahar, Krishika. Okay, beta. What about others? See, in exam, if you face any problem, then please, then don't say that, oh my God, this is a hard paper. No, it will be totally rubbish. No use of it. Okay, Harit, so I can see Harit blank page. So haven't you written anything or you are going to start? Harit, your page is blank. You are going to start. Tanmay, blank page. Kavya, I can see something you have written. That's good. Krishika has shown me the copy. Okay. Divya, Raghav, Priyansh, Rishabh, Tejaswat, Meeti, Sneha, Raj, Garvik, Bhumi, Darshan, Manvi, Vanshika. All of you are having webcam, but you are not turning it on. Don't regret if I cut your marks. Agam Vaidya, I am in PC. So, what's the status of your solving sample paper? Have you solved or not? Tell me. And I can't understand whether you don't understand English or not. You have to turn on your camera. What kind of attitude you are showing, I can't understand. Don't take everything lightly, okay? And quite grown up children you are. Why should I repeat same thing again and again and again? Don't you have that much of, self respect? Still, I can't see that many students are totally, you are not giving any response, you are not doing the work properly. Great, absolutely great.
Now, to whom I am teaching, I don't know. I should stop teaching. What the? Excellent. Okay, no problem. Those who are not giving any response, turning on the video, very nice beta. बहुत अच्छा काम कर रहे हो. Carry on. I haven't nothing to say. Okay, so let us continue. At least those who are serious for the study. Okay, so here one more extract, and I think you have understood which story it is. Can anybody tell me which story? On reaching the top, Santosh Yadav. Yes, reach for the top. Along with Santosh Yadav, whose story is there? That is also, I think, you can remember. Maria Sharapova. Maria Sharapova. Okay, she was American girl or something else, Russian. Russian. Sir, Russian. Russian girl. but she was in USA and she played Russian girl. on behalf of USA. Sir, she was Russian, but she went to America for training for tennis. Is it right answer? Which Shital has given? Yes. Yes, sir. Right, Yes, sure. sir. Okay. Yeah, absolutely right answer. Native place. Okay, native place of Maria Sharapova is of course Russia, and she went USA for for the training of tennis, and she became the what do you call number one tennis player in the world. Okay, so extract must be read properly. Thereafter, Santosh went on an expedition every year. Her climbing skills matured rapidly. Also, she developed a remarkable resistance to cold and the altitude. What does it mean by altitude? It is the term of SST. Yes. What do you mean by altitude? बहुत ही सा वर्ड है ये. एसएसटी में तो बहुत. Sir. Temperature. No, actually it is not temperature. Yes, anyone else? But temperature comes in this term, but I mean it is not actually the part of temperature. It affects temperature. बोलते हैं ना high altitude. Then also you know that what do you say? Excess equator, then cancer. ये जब excess है imaginary, ठीक है, इसका altitude. Okay, however, so altitude means height. Okay. Equipped with an iron will, physical endurance, and an amazing mental toughness, she proved herself repeatedly. The culmination of her hard work and sincerity came in 1992, just 4 years after she had shyly asked the Aravalli mountaineers if she could join them. Okay, at barely 20 years of age, Santosh Yadav scaled Mount Everest, becoming the youngest woman in the world to achieve the feat. If her climbing skills, physical fitness, and mental strength impressed her seniors, her concern for others and desire to work together with them found her a special place in the hearts of fellow climbers.
So you have prepared the notes, and I think you go through the word meaning. Okay, मतलब हालांकि it seems boring to remember the word meaning, but इंग्लिश में बोलो या कोई दूसरे सब्जेक्ट में बोलो, एकमात्र हिंदी और संस्कृत छोड़ के बाकी सब में तो इंग्लिश ही काम आता है. सो यू मस्ट गो थ्रू द वर्ड मीनिंग रेगुलरली. ठीक है, ये जो कल्मिनेशन का मीनिंग अभी आप देखना पड़ेगा आपको. यू हैव टू सर्च इन योर नोट व्हाट डज मीन बाय कल्मिनेशन. ओके, बट देयर विल बी क्वेश्चन ऑन दिस वर्ड. ओके, जो इरेगुलर वर्ड्स है उस पे पक्का क्वेश्चन रहता ही रहता है. ठीक है, एंड्योरेंस, दिस इज ऑल्सो नाइस वर्ड. ओके, सो एक्सट्रैक्ट तो हमें समझ में आ गया. ठीक है, अब क्वेश्चन पे चलते हैं और तुरंत अपना दिमाग लगाओ, अपना दिमाग को ऑन करो, टर्न ऑन योर ब्रेन एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन. As per this extract, which of the following statements is not true? ठीक है, एग्जाम में अगर ऐसा आता है ट्रू और नॉट ट्रू में, नॉट अगर है लिखा है तो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि नॉट ट्रू में ऐसा होता है कि 3 सही होगा, 1 गलत होगा, और ट्रू में क्या होता है 3 गलत होता है, 1 सही होता है. तो जहां नॉट ट्रू लिखा है वहां हमें थोड़ा नहीं काफी हमको क्या बोलना चाहिए, कंसर्न होना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा. सो पहला स्टेटमेंट है संतोष वॉज शाई बाय नेचर. डू यू सपोर्ट दिस स्टेटमेंट? जल्दी से बताओ. संतोष, No, sir. No, sir. It is not No, true. sir. हाउ No, कैन यू से sir. इट इज नॉट ट्रू? मतलब हम कैसे बोल सकते हैं शी वॉज नॉट शाई? ओके, लॉजिक भी तो देना पड़ेगा ना बेटा. भाई लॉजिक यही है कि जब उन्होंने आरावली हिल में माउंटेनियर्स को देखा, संतोष यादव ने जब उनको देखा, वो अगर शर्माती तो फिर वहां नहीं जाती या उन लोगों से नहीं पूछती कि भाई मैं भी चढ़ सकती हूँ क्या. ठीक है, तो वो नहीं पूछती अगर वो शाई होती. नेक्स्ट, संतोष वॉज मेंटली एंड फिजिकली टफ. ये लग तो रहा है सही. आगे बढ़ते हैं. संतोष वॉज कंपैशनेट. इज इट ट्रू? संतोष वॉज कंपैशनेट. Yes, my dear children, give me response. नहीं तो ऐसा लगेगा कि मैं पत्थरों को पढ़ा रहा हूँ. क्या हम बोल Yes, सकते sir. हैं कि संतोष कंपैशनेट थे? अगर हाँ, Yes, sir. एक रीजन तो मुझे बताओ. दिमाग नहीं लग रहा है? लगाओ, दिमाग को चलाओ और एक क्लू ढूंढो जिससे ये साबित होता है कि यस शी वॉज रियली कंपैशनेट टू अदर पीपल. मेरे को तो याद आ गया. She ran from her home for studies. एक्चुअली बेटा पैशनेट और कंपैशनेट में डिफरेंस है. ठीक है, पैशनेट मतलब जो तुमने कहा वो पैशनेट का रीजन है. कंपैशनेट मतलब व्हेन यू आर काइंड और हेल्पफुल टू अदर पीपल. जैसे कि एक मॉम होती है ना अपने बच्चों के लिए, बहुत ज्यादा केयरिंग होती है. Sir, तो she said She helped 2 mountaineers. एग्जैक्टली sharing the oxygen. एग्जैक्टली. अब सही लगा. और बाकी लोग बस सुनते रहो. डोंट गिव एनी काइंड ऑफ रिस्पॉन्स एंड डोंट टेल एनीथिंग. नाइस, कमेंडेबल. Yes, so the reason which we can put that proves Santosh was compassionate, that is, once she saved mountaineers by sharing oxygen, so that shows she was compassionate. तो ये तो true हो गया. Next, Santosh had team spirit. ये भी true है. क्या बोलते हो? What do you say? Yes, sir. Sir, option A is false. हाँ, so जो अपना इस क्वेश्चन के लिए जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए. बाकी सारे ऑप्शन ट्रू है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. चलो नेक्स्ट. Which mental qualities of Santosh have been listed in the given extract? Okay, ये थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपको लगेगा कि सारे सही है. ठीक है, लेकिन एक ऑप्शन में तो कुछ नेगेटिव सा दिया होगा जो हम है.
Which mental qualities of Santosh have been listed in the given extract? Sir, D. Okay, but देख D. लेते हैं. D. पहला ऑप्शन में विल पावर, यस शी हैज सिंसियरिटी, ऑफ कोर्स. शाइनेस, तो यहाँ पर अटक गया हमारा माउस पॉइंटर, अटक गया, तो ये तो हो नहीं सकता. शाइनेस आ गया तो ये ऑप्शन कट गया. डी ऑप्शन भी शाइनेस है तो वो भी कट गया. बाकी पढ़ने की जरूरत तो है नहीं, फिर भी आप पढ़ सकते हो. बाकी तो क्वालिटीज है संतोष में, विल पावर है, मेंटल स्ट्रेंथ है, कंपैशन है, टीम स्पिरिट है, लेकिन ये नहीं है. थर्ड भी सेम केस हो गया. अब बचा क्या हमारे पास? द लास्ट ऑप्शन, दैट इज विल पावर, ऑफ कोर्स. मेंटल एंड्योरेंस, ऑफ कोर्स. सिंसियरिटी, यस. कंपैशन, यस. टीम स्पिरिट, यस. सो ऑल द क्वालिटीज आर available in Santosh. Okay, so right option is D. Clear? हाँ, ये वाला क्वेश्चन आपको थोड़ा परेशान कर सकता है. Let us see who can give the right answer. Yes, Kavya, you want to say something? No, sir, by mistake. Okay, so choose the option that marks the stage in Santosh's life correctly. Okay, so you can see 5 boxes and 5 different stages. Now you need to arrange it ascending order, in ascending order. So let us read the stages. Santosh scaled Mount Everest. Second, Santosh asks the Aravalli mountaineers if she could join them. Third, Santosh went on an expedition every year. Fourth one, Santosh's climbing skill matured rapidly. Or Santosh was appreciated by peers and seniors alike. Now, first of all, which can help you. First of all, you find the first stage and the last stage. So, according to you, which one should be the last stage? Yes, give me response. Sir, fifth. फिफ्थ वन. ओके, मुझे भी लग रहा है. बाकी लोगों को क्या लगता है, वो बताओ. कोई बात नहीं, गलत होगा सही होगा, इट डजंट मैटर, लेकिन कुछ बोलो. Fourth. एक ही रेस्पॉन्स मिला अभी तक 27 बच्चों में से. हॉरिबल. Fourth. समवन सेड फोर्थ. संतोष क्लाइंबिंग स्किल मैच्योर्ड रैपिडली. ठीक है, कोई बात नहीं. अगर आप फर्स्ट और लास्ट स्टेज लिए तो आप तुरंत आपको ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा उसी ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हो. तो बताओ जल्दी, फटाफट बताओ. यस, हरित, राघव, कहाँ गए सब भाई? शीतल, स्नेहा. Sir, fourth. स्नेहा C. ठीक है, कोई कह रहे हैं फिफ्थ वन, कोई कह रहे हैं फोर्थ वन. यस, मानवी, व्हाट डू यू से? Sir, in passage, fifth one. इन द पैसेज, एक्चुअली यहाँ पर तो हमें पैसेज के हिसाब से तो नहीं बोला गया है. हमें पूरा स्टोरी के हिसाब से बोलना पड़ेगा. ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे. दैट्स व्हाई आई यूज्ड टू से कि रीड द स्टोरी प्रॉपरली. अगर स्टोरी को नहीं पढ़ोगे तो फिर ये एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन का सॉल्व करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. यस, जल्दी But से. मुझे तो लगता है लास्ट जो है वो फिफ्थ. कैसे फिफ्थ हो सकता है क्या? लेकिन फिफ्थ तो किसी ऑप्शन में नहीं. अगर Sir, आप option B. राइट आंसर आप बोल रहे हो ऑप्शन बी. 2, 3, 5, 1, 4. No, sir, sorry. Option. चलो एक बार. Sir, option D. हाँ, एक मिनट, एक बार एक्सट्रैक्ट को फिर से. Sir, C. ओके, एक बार एक्सट्रैक्ट को फिर से देख लो. देयर आफ्टर संतोष वेंट ऑन एन एक्सपीडिशन एवरी ईयर, हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड रैपिडली. तो देखो यहाँ पर भले ये लिखा है कि देयर आफ्टर मतलब उसके बाद. किसके बाद? एक्चुअली उन्होंने यहाँ एक बीच में और एक लाइन है, शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन इस बार ध्यान दो कि यहाँ पर बोला गया है कि द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी केम इन 1992, जस्ट 4 years आफ्टर शी हैड शाइली आस्क्ड द अरावली माउंटेनियर्स इफ शी कुड जॉइन देम. मतलब अरावली जो माउंटेनियर्स है वो वाली कहानी जो है वो 4 साल पुरानी है.
अभी जो है वो देयर आफ्टर मतलब पूछने के बाद। तो पहले तो ये आ गया कि अरावली माउंटेनियर से पूछना, ठीक है, क्योंकि उन माउंटेनियरिंग का जो उनका क्या बोलना चाहिए पैशन, माउंटेनियरिंग का जो पैशन है वो आया कहाँ था, कहाँ से आया था, जब उन्होंने अरावली माउंटेनियर्स के साथ माउंटेनियरिंग किए थे, है ना। उसके बाद क्या है, एट बेयरली 20 इयर्स ऑफ एज संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट। चलो ये हमको भी मिल गया, माउंट एवरेस्ट का। ऑफ कोर्स माउंट एवरेस्ट का स्केलिंग जो है वो इसके बाद आएगा, ये जो एक्सपीडिशन है, एक्सपीडिशन के बाद माउंट एवरेस्ट का स्केल आएगा। और एक्सपीडिशन के पहले क्या था, एक्सपीडिशन के पहले आपका ये अरावली माउंटेनियर्स से पूछना। 3 तो हमें मिल गया। Becoming the youngest woman in the world to achieve the feat. If her climbing skills, physical fitness and mental strength impressed her seniors, तो ये उसी के बाद दिख रहा है हमें एवरेस्ट के स्केलिंग के बाद। तो अभी लगभग हमें 2-3 आइडिया तो मिल चुका है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुश्किल नहीं होगा शायद। अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले 2 आ रहा है, करेक्ट। इन 5 में से Yes, sir. 2 आ रहा है कि नहीं। Yes, sir. तो 2 किस किस ऑप्शन में है, एक बी में है और एक सी में है। तो बाकी दोनों को देखना ही नहीं है, ए और डी को नहीं देखना है, अब बी और सी को ही देखना है। अब 2 के बाद क्या आ सकता है, 2 के बाद दोनों में 3 है, इसमें भी 2 के बाद 3 है, इसमें भी 2 के बाद 3 है। तो देखते हैं। तो ये तो डन हो गया कि भाई 2 के बाद 3 आ जाएगा। संतोष वेंट ऑन एक्सपीडिशन एवरी ईयर, ये 3 हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 1 है, ठीक। अब 5 में क्या है कि संतोष वॉज अप्रिशिएटेड बाय पीयर्स एंड सीनियर्स अलाइक। ये पहले हुआ था कि ये पहले हुआ था, बताओ मेरे को। 5th पहले हुआ होगा कि 1 पहले हुआ होगा। First. One. सर 5। First. तो फिर बी कट गया, बी कट गया ना। Yes, sir. हमारे पास Sir. बचा क्या हमारे पास, सी। अब सी को एक बार पूरा देख लो। 2 संतोष ने माउंटेनियर्स से पूछा कि अगर वो ज्वाइन कर सकती है क्या। 3 में क्या है कि संतोष वेंट ऑन एन एक्सपीडिशन एवरी ईयर, ये भी सही है। 1 में क्या है, संतोष स्केल्ड माउंट एवरेस्ट। यस, जब वो जा रहे थे हर साल एक्सपीडिशन में, उनका स्किल डेवलप हुआ और वो उन्होंने 20 साल के एज में ही माउंट एवरेस्ट को स्केल कर लिए। देन 5 में क्या है, संतोष वॉज अप्रिशिएटेड बाय पीयर्स एंड सीनियर्स लाइक्स। यस हुआ। और उसके बाद लास्ट में संतोष मैच्योर्ड रैपिडली। तो इस तरह से इसको आप अरेंज कर सकते हो, ठीक। नेक्स्ट, अब ये वोकैबुलरी का गेम आ गया। और वोकैबुलरी का गेम अभी तभी जीत सकते हो जब आप जो मैंने नोट्स दिया है एक्सरसाइज सॉल्यूशन में, तो क्वेश्चन आंसर है, नोट्स में आपके वोकैबुलरी है। और अगर नोट्स के सारे वोकैबुलरी को याद कर लिए हो, देन ओनली यू कैन सॉल्व दिस, ठीक है। और वोकैबुलरी का काम बहुत बड़ा है क्योंकि इट इज जस्ट लाइक पोर्शन, है ना। तो रोज अगर गो थ्रू नहीं करोगे वर्ड मीनिंग से तो कुछ फायदा होने वाला नहीं है। सिंपल सी बात है और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। देयर इज नो शॉर्टकट टू रिमेंबर द वोकैबुलरी। क्लियर। रूट वर्ड होता है लेकिन वो अभी तुम लोगों के लिए थोड़ा सा टफ जाएगा। फिलहाल तो आप रिपीट करो, वर्ड मीनिंग का याद हो जाएगा। The word culmination is not similar to which of the words given below. Not similar मतलब आपको एंटोनिम ढूंढना है, not synonym. You have to find antonym of culmination. अब अगर हमें वो culmination का मतलब ही नहीं पता होगा तो भाई हम कैसे पता करेंगे उसका ऑपोजिट क्या हो सकता है। तो जल्दी से मेरे को बताओ कोई culmination का मतलब क्या है, जल्दी से बताओ। Peak. Peak. का मतलब पीक है, तो यहाँ पर तो पीक है, सी दिख रहा है, तो वो नॉट सिमिलर पूछा है तो सी कट गया। सर डी। D. डी कोई बोल रहा है डी और कोई बोल रहा है D. पक्का। सर ए बी सी तो सिमिलर टाइप के हैं। ए और ए बी सी सिमिलर है, यानी सिनोनिम है sir. कल्मिनेशन के, और डी अलग अलग है। ए तो बेटा ए जो है वो कंप्लीशन है,
ये सर पीक पे जाएंगे तो कैलकुलेशन तो हो ही जाएगा। समिट का मतलब होता है पीक, टॉप, मतलब कोई पहाड़ का जो टॉप है उसे समिट कहते हैं, पीक भी कहते हैं उसे। जेनिथ का मतलब अगर आपको मालूम होगा तो ही आप बता सकते हो। ए और डी में कोई एक आंसर होगा। जेनिथ का मतलब क्या है? अगर नहीं पता तो यू कैन सर्च, कोई बात नहीं। अभी तो हम लोग सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म Sir, answer is A. आंसर इज ए। Sir, Zenith is यस सर also ए, जेनिथ में दी है related to peak. Sir, answer is A. Sir, it's A. हाँ, ए राइट आंसर होगा, क्योंकि कल्मिनेशन का मतलब क्या होता है? एकदम टॉप पे, जब आपका परफॉर्मेंस एकदम टॉप पे पहुंच जाता है, दैट इज कॉल्ड कल्मिनेशन। सो पीक टॉप है, समिट भी टॉप है और जेनिथ भी टॉप ही है, बट इट इज इमेजिनरी। ठीक है, जेनिथ जो है वो एक इमेजिनरी पॉइंट है। हम लोग कई बार सोचते हैं ना, बस मैं बहुत मेहनत किया हूँ, इस बार तो मैं क्लास में टॉप करूंगा ही करूंगा, रिजल्ट निकलने से पहले जो हम सोच लेते हैं ना, तो वो जेनिथ है। तो यहाँ पर सिर्फ कंप्लीशन जो है वो कल्मिनेशन से मैच नहीं कर रहा है, तो दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सर पूछ सकते मीनिंग हो। मायरा शारापोवा जेनिथ में थी। जेनिथ में देखो, जब तक आप इमेजिनेशन में हो तब तक आप जेनिथ में हो, अगर वो ट्रू हो जाता है फिर तो आप कल्मिनेशन में पहुंच गए ना। एक इमेजिनरी है, एक रियल है। तो पॉसिबिलिटी का है मतलब जेनिथ का। हाँ, कह सकते हो 50-50%। ओके सर। Next, question number 5. What did Santosh do that proves that she had concern for others? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आई डोंट थिंक इसमें आप गलत करोगे। बताओ भाई, कौन सा ऑप्शन सही लग रहा सर है? ए। Sir, A. वाह, बी नहीं लग रहा है। D. D. ये तो पूरा ऑप्शन पढ़े नहीं हो। सर उसमें कंसर्न फॉर अदर कैसे हुआ? Wow, she is taking care of environment, and if you take care of environment, then of course you are taking care of human beings, because environment is there, and I mean we are not for the environment, ना, मतलब environment है करके हम हैं, हमारे लिए environment नहीं है, environment के लिए हम हैं। ये भी तो एक कंसर्न हुआ ना। अगर environment यस सर। नहीं रहेगा तो हम जिंदा कहाँ बचेंगे भाई? ये इनडायरेक्ट है, हालांकि थोड़ा सा इनडायरेक्ट है। तो दोनों ऑप्शन जो है वो सही है, ए और बी। तो इस हिसाब से हमारे लिए सही ऑप्शन होगा बोथ ऑप्शन ए एंड बी। इफ यू गो थ्रू द क्विज ऑफ एलएमएस पोर्टल, देन यू मस्ट हैव सीन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। लेकिन जिन लोग नहीं जाते हैं एलएमएस पोर्टल के, उनको नहीं पता होगा। यस, कोई गया है, कोई जाता है मतलब एलएमएस पोर्टल के क्विज को सॉल्व करने? कोई है? Yes, हाफ ईयरली sir. Yes, में गया था। sir. Yes, sir. इस टाइप के क्वेश्चन मिला कि नहीं मिला? विच इज Yes, sir. ठीक है, अभी बोल तो यस रहे हो, लेकिन अब मुझे मतलब डाउट जाता है। ठीक है। सर हाफ ईयरली के टाइम गया था मैं। उसके बाद नहीं गए? नो सर। उसके बाद भी जाओ, सारे चैप्टर के क्विज है, एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, सो ये हो गया हमारा प्रोज का जो एक्सट्रैक्ट है, बिहाइव के प्रोज का एक्सट्रैक्ट का सॉल्यूशन हमको मिल गया है। इसके बाद पोम का आता है, तो यस, ये पोम का नाम बताओ और राइटर का नाम बताओ एक बार जरा। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन, सर द रोड नॉट टेकन। The road not taken. exactly, and the writer, poet, I must say poet, नाम है उनका, it starts with R. Robert Frost. Exactly, Robert Frost. ओके, मतलब पोएट का नाम कई लोगों ने याद किया है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सी क्लास 12 में, क्लास 12 छोड़ो, क्लास 9th में भी हो सकता है कि पोएट का नाम पूछा जाए। 12 में तो पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है,
अभी 9th में हो, कोई बात नहीं, 2 साल बाद तो चले जाओगे 12th में। बोर्ड एग्जाम में पोएट का नाम पूछा जाता है, सो दैट्स व्हाई यू मस्ट नो द नेम ऑफ द ऑथर, राइटर्स एंड पोएट, ठीक है। ओके, so two roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both. And be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear. Though, as for that, the passing there had warned them really about the same. ओके सो ये जो हम लोग चैप्टर पढ़े थे, मुझे याद है हम लोगों ने फेसबुक लाइव में जाके पढ़ा था, है ना? जब हम फेसबुक में क्लास ले रहे थे, दैट टाइम Yes, sir. द पोम, आई थिंक थोड़ा बहुत याद होगा, अगर याद नहीं है तो मैं याद दिला देता हूँ। यहाँ पर जो द रोड नॉट टेकन, written by of course Robert Frost, he has nicely depicted the situation of our real life. हम रियल लाइफ में भी कई बार हमारे सामने ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, तो हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि किस ऑप्शन को चुने ताकि वी कैन गेट द अल्टीमेट सक्सेस, ठीक है। तो पोएट भी एक इमेजिनरी सिचुएशन यहाँ पर दिखाए हैं, जहाँ पर वो एक ऐसे जगह पे खड़े हैं जहाँ से रोड डाइवर्ट हो गए हैं, है ना? और एक रोड तो बहुत इजी दिख रहा है और एक रोड बहुत टफ दिख रहा है। टफ वाले रोड में लेस ट्रैवलर गए होंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि सब आई मीन टफ रोड में चलना एक बहुत बड़ी बात है, और एक इजी रोड है जिस पे बहुत लोग चलते हैं, ठीक है। तो जो इजी रोड पे चलते हैं दे आर कॉमन पीपल, और जो स्ट्रगलफुल रोड पे चलते हैं दे आर नॉट कॉमन, दे आर यू कैन से क्या बोलना चाहिए इनको, एक्सेप्शनल, they are leaders, they are social, Extraordinary. they are extraordinary, you can say. Okay, so one who travels with the difficult road, he gets an identification in the society. तो ठीक है, ये तो था उस पोम का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चंस को देखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। What do you think the phrase yellow wood suggest here? Well, generally we know that wood means लकड़ी, लेकिन यहाँ पर wood का मतलब होगा forest. Okay, you can say jungle, you can say forest. तो यहाँ पर बोला गया है कि what do you think the phrase yellow wood suggests here? Yellow trees, a wood in autumn foliage, flush with the golden rays of the morning sun, the dry yellow leaves of the trees that have fallen to the ground, or a wood in autumn foliage in the afternoon. अब ये ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों तो मतलब एक जैसा दिख रहा है, लेकिन टाइम का अंतर है। ऑप्शन बी, देखो ऑप्शन बी और सी में एक राइट ऑप्शन होगा, ठीक। अब लॉजिक लगाओ कि ऑप्शन बी सही होगा कि ऑप्शन डी सही होगा। Sir, option B. Option B. Why don't you think option D is correct? ये तो देखो येलो वुड है, तो ऑफ कोर्स मैंने कहा था कि एक ऑटम सीजन में क्या होता है, जो पेड़ है उनके पत्ते येलो हो जाते हैं, येलोइश हो जाते हैं, तो हमको सीजन तो पता चल गया था ऑटम का सीजन है। अब दोनों ऑप्शन में कंफ्यूजन ये है कि एक मॉर्निंग टाइम बताता है और एक आफ्टरनून टाइम बताता है, तो बताओ भाई कौन सा टाइम लग रहा था? बी ऑप्शन सही होगा कि डी ऑप्शन? B. बस एक डी ही से मुझे रिस्पांस मिल रहा है, बाकी लोग बताओ भाई क्या होगा? सर ऑप्शन डी Sir, D. Sir, option D. Sir, D. ऑप्शन डी, आर यू श्योर आफ्टरनून ही होगा? यस सर। ऑप्शन डी क्यों होगा? इसका अगर लॉजिक पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? सर पोएम Foliage का मतलब I think कुछ पता हुआ ही होगा। नहीं था। हाँ बेटा,
पोयम में मॉर्निंग के बारे में बात हुआ ही नहीं था। लेकिन आफ्टरनून पे भी बात हुई थी क्या? नो सर, इसमें स्पेसिफाई भी किया ना मॉर्निंग वाले में, फ्लश विद गोल्डन रेज, तो गोल्डन रेज के बारे में बात नहीं हुआ था। तो बताओ भाई, कितने लोगों को लग रहा है बी और कितने लोगों को लग रहा है डी? जल्दी बताओ, उसके बाद फिर हम लोग एक ऑप्शन को लॉक कर देंगे। फिर अगर सही हुआ तो हमको पैसा मिलेगा फिर केबीसी से। मैसेज में आ रहा है, यू कैन ऑल्सो सेंड मैसेज। तेजस्वा डी, कृषिका ए। ओके, नाइस एफर्ट। बाकी लोग बताओ जल्दी फटाफट। स्नेहा जैन डी। हम्म। नीति डी। हरित बोल रहे हैं डी लॉक कर दिया जाए। अच्छा, लॉक तो कर देते हैं डी को। और दोनों कर दीजिए, आंसर होगा वो मेरा। हम्म। दोनों कैसे लॉक कर देंगे? कंप्यूटर कोई एक ही लॉक कर पाता है, इसमें ड्यूअल ऑप्शन तो है ही नहीं। अभी तक 3-4 लोगों का ही आया मैसेज, बाकी कहाँ है भाई? भूमि कोचर सी। See the yellow leaves of the trees that have fallen to the ground. बेटा यहाँ वुड का